Assalamu alaikum everyone. जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। मूसा, फातिमा, हैदर और बाकी के लोग, अरूबा, तुम लोग वालेकुम सलाम। टेस्ट किधर तुम लोग? अरूबा की भी तबीयत खराब और उम्र बनीन की भी तबीयत खराब थी, लेकिन उसने काम किया है। और बहुत सारे बच्चों के तो घर भी शिफ्ट हो रहे थे, बट स्टिल दे डिड देयर वर्क। एक्सीलेंट, गुड एफर्ट। एंड वन मोर थिंग, आई एम नॉट लुकिंग फॉर द राइट आंसर्स, आई एम लुकिंग फॉर द अटेम्प्ट्स. And I'm glad and very happy that most of you, the people they have attempted the test, it was a sort of assignment. It wasn't a test, but assignment. Most of you have done it impressively. I'm very happy with that. ठीक है। तो जिन बच्चों से नहीं हुआ किसी भी वजह से, जैसे हैदर आप बीमार थे, तो उसको अटेम्प्ट जरूर करना. आई एम जस्ट गोइंग टू डू 2 questions for you people on the board, ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो. ठीक है. If you people got that with you right now, take it out. Otherwise, मैं अपने लैपटॉप को शो कर ही रहा हूँ आप लोगों को. Okay. सिर्फ 2 questions because Aruba and one more student they have just said कि सर एक आध हमें we were not that confident but we tried to attempt that, तो एक आध हमें कर दें, तो इसलिए हम वो करें and then we will move on to today's topic. बेटा इसको कोई जरा करेगा अगर I want you to just yeah. All right. Yeah. Was it not okay? Test me for me. Question number 1, 2 and 3 they were logical reasoning और वो आप आराम से कर सकते थे. 4, 5 and 6 के लिए you were supposed to use the equations of motion, 3 equations of motion जो आप लोग कर सकते थे, right? और उसके बाद 7, 8, 9 and 10 के लिए वो motion under the gravity वाला सारा सीन, तो वो आपने under the influence of gravity वो वाला कर. ठीक है. I'm not going to share के आपने इसमें से कौन सी इक्वेशन यूज करनी है और क्या करना है. I'm straight away reading the question for you and doing it. जैसे look at number 6. Number 6, question number 6 is an object traveling at. You see, when you are actually doing the questions, जब आप practically खुद से कर रहे हो, तो there are other details जो आपको which are helpful and which you need to know. You see, when you are reading the question, start underlining the information. An object traveling at 8 meters per second. What do you mean by this? 8 meters per second. What is it? Is it time, velocity, acceleration, or distance? Now, for that, you will look at the unit. That is going to help you. What is the unit here? Meter per second. Meter per second is the unit for? Okay, now, velocity. Which velocity it can be? We have 2 types of velocities. One is initial, and the other is final. Now, you have to see whether it is initial or final. Read it again. An object traveling at 8 meters per second deaccelerates. Okay? At 4 meters per second square. What is this? 4 meters per second square means, again, this unit is going to help you. Meters per second square is the unit for acceleration. How far? Far means distance. Does it travel before it
comes to rest, final velocity कितनी हो जाएगी 0 meters per second. Then it means this is the emission, right? So in this way you can figure out, you can find out or determine the information given to you, but that does not like give you the leverage to just make the data over here. No. एक बड़ा अच्छा बच्चा सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे किए और उसको वेरी गुड भी मिला है, स्टिल उस बच्चे ने डेटा नहीं बनाया, मैंने मेंशन भी नहीं किया, उसको डिस्करेज नहीं करना चाह रहा हूँ, बट आई रियली वांटेड टू रेनफोर्स दिस प्रैक्टिस. बेटा अभी के क्वेश्चन सारे समझ में आ गए हैं आपको, यू गॉट द मास्टरी स्टेज फॉरन कर लो, बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर्स और उसके बाद के चैप्टर्स. सो फॉलो दैट पैटर्न, उसी तरह ही करने हैं सारे, चाहे आपको क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे. ठीक है, आ जाओ इसका डेटा बनाए नंबर 6 का. you 8 meters per second. A acceleration 4 meters per second square. How far? B question mark comes to rest. V is equals to 0 meters per second. Give it up. Acceleration minus 4 will be the acceleration. Oh yes, the acceleration. This is the acceleration. Good. Shabash. Very good. Okay. So data is in front of you. What we have to determine? D. Now this D is going to help us to see which formula we are going to use. अब वो वाला formula ढूंढे जिसमें D है. D first equation of motion में है? नहीं. That means पहली तो गई. दूसरी सेकंड में है, सेकंड में और क्या है? T. T इसमें है? No. T सेकंड में गई. Third is 2AB is equals to B square minus रूबा. ठीक है, नहीं हो जाएगा. वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन हो जाएगी कि नहीं? ठीक है बेटा, इस तरह से राइट. समझ आ रहा है बेटा? देखो फिजिक्स से न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने आपको पहले बताया, लॉजिक, रीजनिंग, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला के साथ साथ क्या और चाहिए? करेज. यू कैन डू इट. करेज भी चाहिए, घबराना नहीं, फिक्रमंद नहीं होना कि रॉन्ग हो जाएगा तो हम मिलकर ठीक करेंगे, कोई बात. ओके, अटेम्प्ट जरूर करना है, कोशिश जरूर करनी है, दाएं बाएं इधर उधर. साबिक, आई एम ग्लैड दैट वी हैव डन दैट कोशिश वेरी वेल, और वो कोशिश ठीक रही है. आई कुड सी बहुत जगहों पे काटा वाटा डाल के दोबारा से ही इज डूइंग इट एंड देन ही इज डन. शाबाश. पाकान, आई एम ग्लैड आपने भी किया बेटा. नाम जरूर लिखा करो ताकि शाबाश देते हुए मैं नाम भी देख लूं. ओके. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 में करना चाह रहा हूँ, डिस्कस करना चाह रहा हूँ, करूंगा नहीं, इसी तरह से डिस्कस करूंगा. और आप क्वेश्चन नंबर 9, दिस वन. An object is dropped from a height of 20 meters. Drop से कुछ समझ आ रही है? Drop. Initial velocity क्या होगा? U क्या होगा? आपका चलो ठीक होगा, 0 meters per from a height. तो सीधा ही बता दिया. H is equals to 20 meters. How long will it take? इसका क्या मतलब है? How long will it take? T to fall to the ground. एक सवाल. दूसरा, what will be its velocity as it strikes the ground? ऐसे बस स्ट्रक्चर से पहले क्या velocity होगी? That is your V. शाबाश. V is also question mark. A acceleration due to gravity, that is for G. G negative होगी या positive? अरुआ
नेगेटिव क्यों? व्हाई डू यू थिंक नेगेटिव? बॉडी को ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? Drop. When it is dropped, it is going to work with the gravity or against the gravity? With the gravity. ठीक है ना बेटा? तो जब with the gravity जाएंगे तो ये एक्सेलरेट होगी या डी एक्सेलरेट होगी? नीचे जाते हुए स्लो हो जाएगी या तेज होती जाएगी? उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेट शावर। जब एक्सेलरेट होएगी तो फिर इधर क्या आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव एक्सेलरेट? ठीक है बेटा, थोड़ा सा सोचना है। चलो कितना आ जाएगा? माइनस या प्लस? माइनस, माइनस 10 प्लस 10 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एक्सेलरेट, राइट? क्या फाइंड करना है? पहले टी और फिर बी। टी किस किस फॉर्मूले में? नंबर 1 है, चेक करके नंबर 1 में ये आता है, वी हैव यू, वी हैव लोड। ठीक है, तो पहला नहीं लग सकता। अब इसमें मुश्किल हो रही, वेट द डेटा। U is equals to 0 meters per second. V is equals to question mark. T is equals to question mark. G is equals to 10 meters per second square. कोई और चीज? H. H is given. यहाँ पे H 20 meters. And यहाँ पर दिया है question mark. जो चीज पहले वो पहले हम फाइंड। All right. तो forget this. पहले इसको देखें। हम दो अननोन्स में इकट्ठा we cannot determine them. All right. तो T के लिए UHPG सेकंड इक्वेशन चलेगी, बिकॉज T किस किस में है? फर्स्ट में और सेकंड में। इधर B नहीं है हमारे पास तो we cannot use first. What is second equation? इतना मजा है ना ऑनलाइन लोगों के लिए, खामोशी से बैठ के देखते हैं बस। और ये जो फंसे हुए बेचारे यहाँ पे, इन्होंने भाई आप लोगों ने भी आंसर देने। टेल मी व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन? ऑनलाइन पीपल, हु इज द करेजियस वन? टेल मी। बख्तियार का तो माइक खराब हो गया, यस आई नो। फातिमा इज नॉट देयर। हादिया शी कैन स्पीक। जी हादिया आप बताएं। Sir, the equation हाँ, H is the second equation. H is equal to what? H is equals to initial velocity ut plus 1/2 gravitational and time square t square. हाँ, देखो बेटा, फातिमा को ऐसे ऐसे याद है, लेकिन when I was of your age और मुझे ये याद नहीं होती थी शुरू में, तो मैं क्या करता था? तीनों इक्वेशन एक पेज पे लिख के मैंने रखे होते, मैं उनको पेज पर निकाल और देखा था कि अच्छा यार कौन सा लगेगा। ऑलराइट, तो यू कैन आल्सो यूज द सेम टेक्निक। अगर नहीं याद हो रही एट द फर्स्ट पॉइंट, लर्न देम बाय हार्ट। अगर नहीं हो रही, राइट देम ऑन अ कार्ड एंड कीप देम विद यू। अपने राइटिंग टेबल के सामने दीवार पर चिपका दो। ठीक है, एक लिस्ट बना दो, पेपर लगा दो, उसमें सारे फॉर्मूले लिखते जाना। फिजिक्स जैसे आते हैं, काइनेमेटिक्स की हेडिंग काइनेमेटिक्स हो गया, अगला डायनामिक्स आ जाएगा, फिर मोमेंट्स, फिर टेम्परेचर, सारे फॉर्मूले इसमें बनते जाएंगे, वो सामने लगे होंगे। जैसे क्वेश्चन किया देख लिए फॉर्मूला, ओ अच्छा ये याद हो जाएगा। ठीक है, यू रिक्वायर दिस सपोर्ट। तो तीनों फॉर्मूले अपने पास लिख के रखें। तो इस फॉर्मूले में व्हेन यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज, कोई मसला है? कैलकुलेशंस नहीं हो सकती, केयरफुल कैलकुलेशन हो सकती है, तो अटेम्प्ट करना है। जी बेटा, लग सकता है तीसरा, लेकिन टाइम फाइंड करना ना बेटा, तीसरे में टाइम नहीं आएगा। हाँ, वी फाइंड करने के लिए वी कैन यूज हाँ, आपने पहले वी फाइंड किया। ठीक है बेटा, यहाँ तक ठीक है। आई वांट ऑल ऑफ यू द रिमेनिंग पीपल हु हैवंट अटेम्प्टेड दैट, उसको खुद से अटेम्प्ट जरूर करो। इट्स अ गुड रिसोर्स। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? चलें आज आगे बेटा, जरा लाइट्स चलो और इसको ऑफ करें।
Thank you. All right. आज हम करेंगे distance time and speed time graph. पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज ग्राफ. व्हाट इज अ ग्राफ? हाँ, ग्राफ क्या होता? ग्राफ ग्राफ होता है सर? नहीं नहीं भाई, कुछ ना कुछ बताइए. ये हैदर, अरूबा, बख्तियार, उम्मुल बनीन, मूसा, व्हाट इज ग्राफ? कल मैच देखा था? और अगर थर्ड लास्ट ओवर में आके कोई बैठता, जैसे किसी काम से भेजा हुआ है किसी ने, वो आया बिल्कुल मैच खत्म होना है, थर्ड लास्ट ओवर, और उसमें एकदम से ग्राफ पॉपअप करे स्क्रीन पे, और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और इंडिया की परफॉर्मेंस उस पर नजर आया, तो मैच पूरे का पूरा समझ में नहीं आ जाता. ग्राफ देख के आप बता देते वो भी, यार ये तो कौन जीतेगा. ठीक है ना, कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो ना. तो व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ इज एक्चुअली द what? Yes, it is the way to represent data. Good. And what else? It is the generalized form of the data. Represent data. Generalized form, simple, sada, or comprehensible. Okay. So this is actually a way of expressing the data in mathematics in which we give an overview of the entire information. ठीक है. और थोड़ा सा ये पिक्टोरियल भी होता है और इसमें सारी डिटेल्स भी होती है. इसको ग्राफ. ठीक है. ग्राफ यूजुअली टू डायमेंशनल जो होते हैं वो कौन कौन से एक्सिस पे बनता है? ऑलराइट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स. I know you people have made so many graphs in mathematics, मैं जरा क्विकली जा रहा हूँ इसमें, बस थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको पता है, मैं इसको जरा चेक करता हूँ. ठीक है, कंफर्म. एक्स एक्सिस का होता है, इसका कोई और नाम है एक्स एक्सिस का? क्या कहते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल एक्सिस. हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्यों कहते हैं इसको? हम वर्टिकल क्यों नहीं कह रहे? वर्टिकल ये होता है. इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्यों कहते हैं? बिकॉज ये होराइजन. होराइजन क्या होता है? होराइजन पे क्या निकलता है? चांद निकलता है, सूरज निकलता है? सूरज. कभी सुबह उठते हो तो पता चलेगा सूरज किधर से निकल रहा हो. ठीक है. तो होराइजन में जब सन बेटा निकलता है सुबह सुबह इस तरह से, पहले सन और फिर उसके बाद 8 मिनट्स एंड 25 सेकंड्स के बाद लाइट आ जाती है एकदम से. तो जैसे ही लाइट ये निकलता है यहाँ पे, तो ये पूरी एक लाइट की लाइन से बनती है जमीन के ऊपर. ओके. तो होराइजन से ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है. ठीक है. सो एक्स एक्सिस और अ फ्लैट लाइन which is a line where the sky and the land they meet, it appears that they meet, उसको हम horizontal line कहते हैं. All right, समझ में आ गया इसका नाम क्यों ना horizon? Horizontal line, horizon से नहीं. Okay. The other one is vertical. This is vertical axis or y axis.
आपने जो भी ग्राफ बनाना है कैम्ब्रिज के हवाले से, आई एम टेलिंग यू व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ग्राफ which you are going to make for physics in your physics paper, whether it is P1 or sorry P2 or P4. Conditions of graph. मतलब ये है कि अगर ये conditions पूरी नहीं करोगे, you are not going to get the marks for that. Condition number 1. Your graph, if you have to plot a graph, then graph must cover 75% or 3/4 of the page or space. ठीक है, अगर आपको एक पूरे पेज का बनाना है जैसे 80 में आएगा तो पूरा ग्राफ पेपर का कितना परसेंट, कम से कम मिनिमम 75% कवर करेगा। इसका क्या मतलब है, लेट्स सपोज दिस इज द पेज, ठीक है, तो कम से कम इतना कितना ग्राफ आपका इस पेज के ऊपर ग्राफ बना हुआ है, ठीक है जी। इसका ये मतलब नहीं कि एक्सेस तो इतने लंबे लंबे बनाएंगे और ग्राफ के साथ ये बना हुआ है, चलो नो, ये ग्राफ, ये कर्व, दिस लाइन, ये कैसे बड़ी होगी, ग्राफ में क्या लेते हो आप, स्केल लेते हो कि नहीं, यस, ये स्केल पे डिपेंड करता है। If your scale is not appropriate, छोटी सी बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी, which you cannot plot here. So appropriate scale means your curve should cover at least 75% of the page as well. यहाँ तक जरूर जाए, यहाँ तक, okay? This is the first condition, that your graph and the curve must cover at least 3/4 of the paper or 75% of the paper. याद रहेगा। कंडीशन नंबर 2, बेटा अगर आप इतना बड़ा ग्राफ नहीं बनाओगे आपके मार्क्स कट जाएंगे, दे विल डिडक्ट द मार्क्स। आपने बिल्कुल सही ग्राफ बनाया है बट इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन इज स्मॉलर, आपके मार्क्स कट जाएंगे। नंबर 2, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, label the coordinates. Let's suppose ये coordinates ये points, मैं रेड से बना रहा हूँ ये points, तो स्टेजेस की ग्राफ की बच्चे इस तरह से बना के छोड़ देते हैं, इनकम्प्लीट, मार्क्स डिडक्ट होते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की वैल्यूज, यहाँ पे आपका एक्स एंड वाई आना चाहिए। ओरिजिन पे क्या होता है, एवरीबॉडी नो, 0 0, शाबाश। इसी तरह से यहाँ पर x1 y1, यहाँ पे x2 y2, इधर x3 y3, x4 y4। बेटा ये इस तरह से लेबल करना है, ओके। आई डोंट नो अबाउट मैथमेटिक्स बट यस फॉर फिजिक्स दीज टू कंडीशंस दे आर मस्ट, मार्क्स कटेंगे वरना। और अर्जन के लिए लिखना है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, यही तो सिखा रहा हूँ बेटा, तो आपको बनाना आता है आप लोगों को, ये चीजों का ध्यान रखना है, ये टेक्निकलिटीज। इसके सही ग्राफ होने के बावजूद इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग दीज कंडीशंस, मार्क्स कट हो जाएंगे, तो फायदा क्या।
4 मार्क्स का ग्राफ है, उसमें से एक नंबर वैसे ही काट दो। ठीक हो गया जी। कंडीशन 1 समझ आ रही है। कंडीशन लेबल द कोऑर्डिनेट्स का मतलब खाली ये नहीं होता कि आपने इनकी वैल्यूज देखी है। लेबल का मतलब ये जो गोल गोल अंडे मैंने बनाए हैं ये भी बनाना है। ठीक है, इसके दो तरीके एंड बोथ आर एक्सेप्टेबल। यू कैन मेक इट लाइक दिस और यू कैन मेक इट लाइक दिस। यू कैन पुट अ क्रॉस बोथ डॉट पे ऐसे करके एक क्रॉस भी लगा सकते। लगाते हो ना आप, ठीक है, एक क्रॉस और क्रॉस के साथ फिर इसको सर्कल भी करना। यहाँ आगे करते हो ना इस तरह से, तो दोनों तरह से एक्सेप्टेबल, राइट। आपने इसे डॉट भी लगाना है, बट डॉट डॉट की तरह हो और डार्क हो। ऐसे करके डॉट नहीं लगा रहे हैं बहुत बड़ा सा, वो फिर वैल्यूज डिफरेंट हो जाए। ओके, एंड यू कैन एक्सप्रेस इट लाइक डॉट विद या क्रॉस विद अ सर्कल। तो क्रॉस जहां पे वो पॉइंट कट कर रहे होते हैं एग्जैक्ट उसी जगह पे आपका पॉइंट। इन बोथ द वेज whether it is a cross or a dot, where they are correct. But yes, coordinates, x and y coordinates, they must be there. उनकी वैल्यूज जरूर हो। ठीक होगी, ओके यहाँ तक। एनी क्वेश्चन? तो रिमेंबर, बड़े साइज का बने, प्रॉपर लेबल होगा। ओके, अब वो कंडीशन तो नहीं है, बट हाउ टू रीड द ग्राफ। पहले तो मुझे ये बताओ, लेट्स सपोज आई हैव अ स्प्रिंग और उसका ये पॉइंटर लगाओ और ये एक पेन है जिसमें मैं वेट वगैरह डाल देता हूँ, डॉटेड वेट्स का, और ये एक स्केल है एंड दिस पॉइंटर मूव्स अगेंस्ट दिस स्केल 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। ठीक है, यानी वेट और ये क्या है, एक्सटेंशन। अगर मैंने वेट इज फोर्स, आर यू ऑलराइट? वेट इज अ फोर्स। किसी भी स्प्रिंग पे फोर्स लगाए तो वो एक्सटेंड हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। तो मैंने इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है, राइट, वेट एंड एक्सटेंशन। तो भाई रबर बैंड होता है, जितनी फोर्स लगाएंगे उतना स्ट्रेच होता जाएगा, राइट। स्प्रिंग है उसी तरह से। सो एक्स एक्सिस पे मैं क्या लूं और वाई पे क्या लूं? जी, एक्स एक्सिस पे क्या और वाई पे क्या बता दीजिए। एंड देन उमर एंड देन मूसा। चलो जी बताओ, एक्स एक्सिस पे क्या लूं? हेलो ऑनलाइन पीपल, जाग जाए। बख्तियार, हादिया, उमर, फातिमा, मूसा, उमर बनी, उस्मान एंड खदीजा, कोई भी बताओ यार। व्हाट शुड आई कंसीडर ऑन एक्स एक्सिस? एक्सटेंशन या वेट? कोई एक तो आएगा ना। सर वेट। वेट, चलो एक बच्चे ने कह दिया वेट, बाकियों का क्या ख्याल है? एक्सटेंशन। चलो दोनों ही लिखी हैं। कोई अपना ओपिनियन तो बना लो यार, आखिर दोनों तो नहीं आ सकते, दोनों में से एक ही राइट रॉन्ग है, लेकिन एटलीस्ट उनमें करेज तो है ना, दे हैव सेड इट। तो अपना ओपिनियन बना के कहो सर ये होना चाहिए, चाहे रॉन्ग ही हो। जी सादिक, व्हाई डू यू थिंक एक्सटेंशन होना चाहिए?
independent. ये इंडिपेंडेंट बोल रहा है, इंडिपेंडेंट देखने जी। हु सेड दिस? बख्तियार और उमर और उस्मान। हु सेड दिस? वेट। भाईजान वेट किसने कहा? आई थिंक मूसा ने कहा, है ना मूसा? ऑलराइट, वेट क्यों नहीं हो सकता हैदर? जो वेट हो सकता है, एक्सटेंशन क्यों रॉन्ग है? ऑलराइट, देखो हम अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से एक्स और वाई एक्सिस को लेबल नहीं कर सकते। देयर इज अ क्राइटेरिया, देयर इज अ मेरिट फॉर दैट। Whenever we have to plot a graph between two quantities, one of them is independent, the other is dependent. Now you have to figure it out which one of them is independent and which one of them is dependent. Hakan, dependent का क्या मतलब होता है? नहीं होता क्या डिपेंडेंट? डिपेंड, आप लोग अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हो अपनी लिविंग के लिए, या अपने तंबू शंबू लगा के रह रहे हो? डिपेंडेंट हो ना? या तो अब मुझे ये बताओ कि एक्सटेंशन और वेट में से कोई एक डिपेंड कर रही है दूसरे पे? व्हाट डू यू थिंक, व्हिच वन ऑफ देम इज डिपेंडेंट? सोचो। एक्सटेंशन वेट पे डिपेंड कर रही है या वेट एक्सटेंशन पे डिपेंड कर रही है? एक्सटेंशन भाईजान ये एक्सटेंड है, उसके साथ ये क्वार्टर लगा हुआ है जो सामने स्केल पे मैंने इसके साथ वेट रखते हैं, जैसे ही वेट डालता हूँ ये और एक्सटेंड हो जाता है, और वेट डालता हूँ और एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, तो स्प्रिंग में ये एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है। तो व्हाट डू यू थिंक, वेट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटेंशन या एक्सटेंशन इज? सर वेट करता है। वेट, तो डिपेंडेंट कौन है? सर वेट ऑलराइट, इनका ख्याल है वेट डिपेंडेंट है। Heather, what do you think? डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट, ऑलराइट। अरूबा, व्हाट डू यू थिंक? फातिमा, हादिया, उमर बनीन, खदीजा। Sir, extension is dependent because if the weight increases, then the extension increases, and if the weight is less extend, there will be less extension. शाबाश, फातिमा ने तो एक्सप्लेन भी कर दिया। She said this is dependent। मैं तो जो तुम लोगों ने कहने मैंने लिखते जाऊँ। वेट कुछ कह रहे हैं डिपेंडेंट, फातिमा सेड एक्सटेंशन डिपेंडेंट है, एंड शी हैज गिवन द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, जो कि मैंने तो समझ ली है, लेकिन आई एम श्योर तुम लोगों को थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। सो कुछ का ख्याल है ये डिपेंडेंट है, कुछ का ख्याल है ये डिपेंडेंट। अपने ख्यालात क्लियर करो। मेरा एक छोटा सा सवाल, एक्सटेंशन खुद ब खुद हो सकती है? किस पे डिपेंड करती है? अरे थोड़ा सा अगर वेट डालें तो एक्सटेंशन कितनी होगी? ये थोड़ी सी। और अगर हैवी वेट डालें तो ज्यादा। तो कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सटेंशन किस पे डिपेंड कर रही है? वेट। So extension is dependent as Fatma she said, and weight is independent. ठीक है, मुश्किल लग रहा है। इनमें से किसी एक चीज को ह्यूमन बीइंग्स कंट्रोल करते हैं, वो इंडिपेंडेंट होती है। हम किसको कंट्रोल कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। अपनी मर्जी से वेट डाल रहे हैं, 10 न्यूटन का डाल दें या 100 न्यूटन का डाल दें, हमने डाला। वी आर कंट्रोलिंग वेट विच इज इंडिपेंडेंट, और उस वेट पे डिपेंड कर रही है एक्सटेंशन। ऑलराइट, सो इंडिपेंडेंट इज ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस। You are right,
लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ा गया तो साबित ठीक हो गया, क्लियर है यार, समझ आ रहा है आप लोगों को। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी किधर आएगी, एक्सिस, होराइजन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सन इंडिपेंडेंट वहीं से निकलेगा, ऑलराइट। और वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगी, डिपेंडेंट विच इज एक्सटेंशन। जब हम इस तरह से लेबल करते हैं तो हम एक्स एंड वाई एक्सिस नहीं लिखते, फिर हम कैसे लिखते हैं, एक्सटेंशन स्लैश, स्लैश का मतलब है एक्सटेंशन का यूनिट। दिस इज नॉट डिवाइडेड बाय, नो, दिस मींस एक्सटेंशन इज मेजर्ड इन व्हाटएवर द यूनिट यू यूज, ठीक है। तो मैं सेंटीमीटर्स लिखता हूं, ओके, एक्सटेंशन सेंटीमीटर्स। वेट किस में आएगा, ऑलराइट, शाबाश, वेट स्लैश न्यूटन, यूजुअली सिंबल ही हम यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ब्रैकेट्स में भी डाल सकते हो, ऐसे भी, दोनों सूत्रों में इज करेक्ट। इस तरह से लेबल करते हैं बेटा एक्सिस। दिस इज थर्ड कंडीशन, एक्सिस विद यूनिट्स। और मैंने आपको बता दिए एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी आएगी और वाई पे कौन सी, पक्का याद रहेगा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाऊं, डिस्टेंस एंड टाइम में से क्या चीज इंडिपेंडेंट है, हैदर का ख्याल है टाइम इंडिपेंडेंट है, सबका ये ख्याल है। डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, टाइम, जितनी देर तक आप लोड करते रहेंगे उतना ही ज्यादा गाड़ी डिस्टेंस कवर करेगी। हम क्या कंट्रोल कर रहे होते हैं, स्टॉप वॉच से टाइम, तो टाइम इज, ओ वैसे भी कोई टाइम को रोक सके आज तक, टाइम होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो वी विल ऑलवेज टेक टाइम ऑन एक्सिस, ठीक है। समझ आ रही है बातें कि नहीं आ रही, कोई और सवाल। कल सब बच्चों ने ग्राफ पेपर लेके आने और ये तीनों कंडीशंस याद रखो। मैं आपसे ग्राफ भी बनवाऊंगा एंड वी आर गोइंग टू रीड द ग्राफ, ठीक है बेटा। आई एम श्योर कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आज आपको मिली होगी, so we are going to practice that tomorrow, all right, chalo, thank you very much. If you have any questions please ask me, otherwise we are done with this session. Khud Hafiz beta, Allah Hafiz, Allah Hafiz. Any questions online people? If you have questions please stay back, and if you don't have you can No, leave. sir. Okay then, Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz. Sit beta, Allah Hafiz. Allah Hafiz.